Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. This is me, Vidushi Arora, a first year student of BCom Honors at SRCC. This is my series called Elevate, where I talk to people from different colleges, different schools, different industries, mentors, to give you the real life insights so that you can fulfill your bade dreams with my choti tips. Today we have with us Jenica Jan, who was the second national topper in class 10th board exams for 2025. So, welcome Jenica to my YouTube channel. And how do you feel? And first of all, tell us a little bit about yourself, your school, your stream, and how was your reaction on getting the score that is 99.8 and being the second in the country. So, over to you. First of all, thank you for inviting me here. I am Jenica Jan. I am a student at BCMRA Model Senior Secondary School, Shastri Nagar, Ludhiana, Punjab. I got 99.8% in my class 10 boards. This was a big achievement for me because it was something I felt for the first time. I was not a great topper from the beginning. I This was the first time I scored this much marks because everyone supported me, my mother, my teachers, even my school, my mentors, my seniors, and that is the reason why I got these marks. So I would like Okay, to thank you all. great, fair enough. So, let's just dive a little into your journey more so that the audience gets to know how they could prepare for the board exams or how they could, in general, about study, not even just specifically class 10th. It could be any class. So, uh, but first things first, like, were you expecting this score that you had, or was it a surprise kind of thing? Because for me, I was expecting, because once the exams happened, that okay, I might get around 98, exams अच्छे हुए हैं, कुछ कुछ तो हो सकता है. So I had a little expectation as far my score was concerned. So what was it for you? Like, did you have any expectation, or it was a surprise? I did think my marks would be around 97, 98 because I felt like I had made some mistakes here and there. But the 99.8 was a great surprise. It took me a lot of time to sink in. I did my calculations again and again. Like, did I get 99.8? Did I not? My father did, my mother did, I did, and it was 99.8. So this was a big surprise for me. So that must have been a really, proud moment. So congratulations on that, first of all. Okay, moving forward, I'd go with a very basic question that is for class 10th, anyone who's giving a board exam this year. What do you think are your three top tips for that one person who is going to give the exams? And second question is कि a lot of people at this stage say कि अरे हमने अभी तक तो कुछ नहीं पढ़ा, क्या ये पॉसिबल है कि हम अभी पढ़ लें और हमारे 90% आ जाए या 95% आ जाए? That means in the last 3 months. So what would be your take on that? कि क्या तीन चीजें करें कि okay they could be in a better position than जो वो अभी है. दूसरा, क्या ये पॉसिबल है कि वो अभी भी मेहनत कर लें तो they could go to 90 or 95 maybe. वो थ्री टिप्स होंगी. राइट व्हाट यू लर्न, लेट नो डाउट्स Hmm. रिमेन विद यू, Hmm. एंड vent out your stress or anger because pressure builds up. I My mother was my greatest stress reliever. I used to talk with her every time I felt something, and she miraculously helped me out everywhere, every time. And to all those students who think they are late and then they want to start their journey now, it is not too late. Boards are nothing if you think of them like that. They are Hmm. just some exams you have already given since nursery to your ninth standard.
मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी बात है बोर्ड। मेरी मम्मी ने मुझे यही सिखाया था। तू हम्म। पेपर देने जा रही है, खुश होके जा, मजे करके आ, पेपर अच्छे से लिखना है, कोई कुछ सोचना नहीं अंदर। और पेपर अच्छा हो जाएगा, नहीं हुआ कोई बात नहीं, अगला पेपर देने के लिए सोचो। तुम्हें पता चल गया तुम्हें यहाँ पे लिखना नहीं आ रहा, तो तुम अगले टाइम के हम्म। लिए प्रिपेयर रह सकते हो। तुम अभी पढ़ना शुरू करोगे तो आगे जा ये हेल्प करेगा। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे बैच में, उन्होंने कह लो दिसंबर से पढ़ना शुरू किया था एंड दे स्कोर 95+। So it is Yeah. not a great deal for you to. If you want to study now, study with basic concept clarity and consistency. वेरी फेयर इनफ, इवन आई बिलीव दिस थिंग कि आपका जो माइंडसेट होता है दैट मैटर्स अ लॉट इन वट एवर फील्ड यू गो। जैसे आपने बोला कि योर मदर यूज टू टेल दिस कि तुम पेपर देने जा रहे हो तो टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ पेपर दे के आओ। आई ऑल्सो एम एन एविड बिलीवर ऑफ दिस कि आपका जो माइंडसेट है, अगर आप बोल के यही जा रहे हो हाय पेपर है पता नहीं कैसे होगा, और अगर आप सोच के यही जा रहे हो कि ये तो एक एग्जाम ही है, मैंने पढ़ा है बस लिख के आना है, तो दैट changes a lot of things for you. So all those who are watching this who are going to give their exams, this is a tip that you should take is अपने mindset में ये लेके आओ कि कोई हुआ नहीं है बोर्ड का, and you could just go about it easily. Yeah. Okay. दूसरा एक question that I get asked a lot from students, be it 10th, be it 12th, कि हम time management कैसे करें। स्कूल में भी जाना है, स्क्रीनिंग भी हो रहे हैं, फिर प्री बोर्ड्स होंगे, देन यू हैव गॉट ट्यूशंस, इसी के बीच में यू गेट योर प्रैक्टिकल्स। तो व्हाट वाज योर टेक ऑन टाइम मैनेजमेंट, या व्हाट वुड यू सजेस्ट एनीवन हु इज स्टक इनटू दिस लूप? फॉर मी, मैं तो स्कूल जाना प्रेफर करती थी। मेरी अटेंडेंस बहुत अच्छी थी बिकॉज मेरे पास ट्यूशंस नहीं थी। वट आई हैड टू स्टडी वॉज इन स्कूल। सेल्फ स्टडी वॉज अ ग्रेट बून फॉर मी, बट स्कूल जाना वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। मैं स्कूल जाके जितने भी डाउट्स होते थे मैं ले लेती थी। मेरे को टीचर्स बहुत अच्छा गाइड करती थी। कभी भी उन्होंने मुझे ना नहीं कहा कि यू कांट टेक डाउट्स फ्रॉम अस, बिकॉज वो कुछ टीचर्स बोलती होती हैं कि यू कैन कम आफ्टर आवर्स एंड पे फॉर दैट। मुझे वो सही नहीं लगा, बट मेरे स्कूल में मुझे ये बहुत अच्छी बात लगी कि टीचर्स वर देयर टू हेल्प मी इवन आफ्टर स्कूल आवर्स। मैं उनके पास जाकर पूरा समझ कर फिर घर पे आकर सैम्पल पेपर सॉल्व करके उनको भेजती थी। वो चेक करके मुझे मेरी गलतियां बताते थे। इंग्लिश टीचर्स ने मुझे बताया कि यहाँ पर यू आर मिसिंग दीज पॉइंट्स, यू आर मिसिंग सच वोकैबुलरी वर्ड्स, यू कैन डू दिस, यू कैन डू दैट। तो दैट रियली हेल्प। सैम्पल पेपर सॉल्व करना इज वेरी गुड फॉर यू। सैम्पल पेपर्स, बट सैम्पल पेपर्स को टाइम बाउंड रखना है। क्योंकि अगर तुम टाइम मैनेजमेंट नहीं करोगे तो पेपर में जाकर कुछ नहीं होता। पेपर में जाके आंसर लिखने, एक आंसर को अगर हम 20 मिनट्स लगा दें लॉन्ग आंसर को, तो हमारे पास बाकी टाइम नहीं बचता। तो वो मैनेजमेंट करनी सैम्पल पेपर से आती है। पीवाईक्यूज आर रियली गुड। अगर तुम लास्ट 3-4 ईयर्स के पीवाईक्यूज कर लो, सैम्पल पेपर्स, क्वेश्चन पेपर्स उठा लो हर सेट के, आई थिंक दैट इज इनफ फॉर पीवाईक्यूज। बाकी तुम Yeah. अपने कंसेप्ट क्लैरिटी पूरी रखो, आगे जाकर पेपर में तुम्हें कुछ नहीं भूले। Yeah. Very fair. And this is something I guess a lot of people out there advocate, be it creators, be it teachers, be it any mentor, कि understanding is very important. And यस। दूसरा एक factor जो sample papers का even I have mentioned in my videos was कि एक बड़ा generalized rule है, मतलब of course this can be customized as per you, कि जितने marks का question है उससे double minutes दे दो। So your 80 marks का paper would get completed in 160 minutes, but you will still have 20 minutes to, revise, to work on your presentation. Like this could be an unsaid rule कि कहीं पे नहीं समझ आ रहा कि हमें कितना टाइम देना चाहिए किसी particular answer को. So you could keep this as a base. But of course, this could depend from, subject to subject and distribution as well. Okay. Anyways, I just want you now to help the people out there जो अभी 10th में हैं कि if you could give them some subject wise tips,
कि ओके एसएसटी में ये कर लो या साइंस में ये कर लो तो बेटर हो जाएगा, जस्ट वेरी स्मॉल स्मॉल दैट कुड कॉल की जेनिका के गोल्डन रूल थे, या उसका सक्सेस मंत्र था, बट गो सब्जेक्ट वाइज सो दैट कि जो देख रहे हैं उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाए, और दिस हेल्प्स देम इन बेटर प्रिपरेशन. सो व्हाट वुड बी योर सब्जेक्ट वाइज mantra, rule, anything? In maths, I would say solve the answers. ये नहीं है कि तुम्हें आता है तो कोई बात नहीं से छोड़ दो. पेपर में सबसे इजी क्वेश्चन ही सबसे डिफिकल्ट लगने लग जाते हैं क्योंकि हमने उनको लिख कर नहीं देखा. So Yeah. solve every question you get. Don't think I've done this, I've done that, I don't need to do it. It's it's very bad, I'd say. And for science, I had a great fear of science. मुझे बहुत मेरे साइंस में कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, मुझे लगता था हमेशा 4-5 कट जाते थे क्योंकि पर मुझे बोर्ड्स के लिए अच्छे चाहिए थे ऑफ कोर्स. तो मैंने Hmm. बहुत सारी बुक्स पढ़ी, मतलब एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश की, जिसका कोई मेरे ख्याल से जिस ऐसे क्वेश्चन कोई आए नहीं होंगे पेपर में, बट कंसेप्ट क्लैरिटी जरूर आ गई, आंसर्स लिखने का तरीका आ गया. सो आई वुड से Hmm. फॉर साइंस यू कैन, देर इज नो बाउंड्री फॉर साइंस. जितने तुम बुक्स रीड कर सकते हो, मैंने आई गेस आई रेड 4 to 5 बुक्स फॉर साइंस. बट मैंने वो बुक Okay. स्टार्टिंग से पढ़नी शुरू की थी, अप्रैल से लेके बोर्ड से पहले तक मैंने जितनी भी मेरे हाथ में बुक्स लगी, मतलब किसी ने मुझे ये Yeah. सजेस्ट कर दी मैंने ये पढ़ ली, किसी ने मुझे वो सजेस्ट कर ली मैंने वो पढ़ ली. हाँ, ये नहीं है कि सारी बुक्स पढ़नी है, बट कुछ बुक्स होती है इफेक्टिव. जैसे मैंने प्रदीप ली थी केमिस्ट्री के लिए. केमिस्ट्री में Yeah. मेरे मार्क्स कट जाते होते थे, तो मैंने प्रदीप, मेरी मैम ने सजेस्ट की थी, मैंने वो ली थी. एंड आई रेड ऑल दोस फॉर्मूलाज. और जैसे जैसे उसमें एक्सप्लेन किया हुआ था ना, आई वो मेरे को अच्छा लगा, मेरे दिमाग में वो स्टे कर गया. मैंने Yeah. प्रैक्टिकल्स ढूंढे ऑनलाइन कि कैसे एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ताकि वो एक विजुअल इमेज मेरे दिमाग में रहे जो मैं पेपर में उसे इम्प्लीमेंट कर पाऊँ. फॉर एसएसटी Hmm. मैंने बहुत अच्छे नोट्स बनाए हुए थे. ज्योग्राफी वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट, जो किसी को लगता I नहीं है. hated I hated geography. Anyways, बट yeah, carry. बिकॉज ऑफ मैंने अच्छे नोट्स बनाए थे, ज्योग्राफी वाज क्वाइट इजी फॉर मी. मैंने मतलब मुझे स्टेट्स याद करने, स्टेट्स के अंदर जो सिटीज है वो याद करनी अच्छी लगती थी. तो मैं हमेशा एक मैप खोल के रखती थी सामने, और उस मैप में लोकेट करती थी कि ये वाली साइट यहाँ पर है, ये डैम यहाँ पर है. वो दिमाग में रिटेन कर गया. और मेरे पास पंजाबी थी. पंजाबी में तो मैं कहूँ मैंने बहुत अच्छे रट्टे लगाए हैं. पंजाबी मतलब अंदर से हो जाती थी यार मेरे को. मेरे पंजाबी में शुरू से मार्क्स बहुत अच्छे रहे थे, तो मेरे अंदर एक पंजाबी के लिए कॉन्फिडेंस था. और मेरे ख्याल से ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि मेरा 1 मार्क पंजाबी में ही कटा है. The languages are like very unpredictable. तुम नहीं कह सकते कि कहाँ आ आई जाए, डिड अ कहाँ वेरी चला सिली मिस्टेक इन पंजाबी. जाए. अरे वो एंड नजर बट्टू होता है, लाइक मे बी यू नो एवरीवन वाज स्पीकिंग दैट लाइक नजर बट्टू लग गया, अगर 100 आ जाते तो इतनी गंदी नजर लगती, क्या हो जाता. तो मैंने कहा ठीक है, कोई नहीं, जीतना नहीं. सेम हैपेंड विद मी फॉर माय अकाउंट्स. मतलब मेरे अकाउंट्स में सारा साल बहुत अच्छे नंबर आए थे, एंड बोर्ड्स में जाके 1 मार्क was gone, and I was expecting कि अकाउंट्स में तो 100 आ सकता है, अकाउंट्स is समथिंग जिसमें आ भी सकते हैं. तो मेरे साथ भी यही हुआ था, सब कहते वो नजर बट्टू लगा रहे ना, इतने सारे 100 फिर एक चाहिए होता है करना. तो इट हैपेंस, कोई बात नहीं. ओके, आई थिंक सो ये टिप्स बहुत प्रैक्टिकल है. सो टू एनीवन हु इज listening, if you work on these, this could work in really really favor of you. As far as I go back to my 10th boards, what she said for maths is a win-win, कि आप maths बिना solve करे नहीं कर सकते. If I come to science, same as her, I had a fear of science. So I specifically went for coaching because of science, and my teacher there was very helpful. But as she said, books, and those books actually worked out for me too. अरे, हम्म.
Okay. So moving forward, we discuss subject-wise strategies, and I think so these people out there will work on it. Do you think there are some study methods that worked for you? Like for me, something that worked was कि I always wanted to have notes. और वो notes मेरे होने चाहिए. I cannot study from somebody else's notes. I want to make my own notes and that would suit to me. मतलब मैं एक ही सब्जेक्ट के दो दो तीन तीन तरह से नोट्स बनाती थी कि ये लॉन्ग टाइम है, ये डिटेल है, ये रिवीजन के लिए है. सो दैट इज व्हाट आई वेंट फॉर. उसके अलावा समथिंग दैट वर्क फॉर मी वाज कि जो पढ़ा है वो लिख लिया, स्टडी टेक्निक. So do you think there were certain study methods or study patterns which you followed and you think कि अगर कोई और भी follow करेगा तो might work for them? जैसे आपने कहा कि आप नोट्स बनाते थे, वो भी 3 टाइप्स के। मेरे को तो इससे डर लगता था। मैं नोट्स नहीं बनाती थी। ज्योग्राफी के लिए मेरे को आदत डल गई थी तो मैंने बनाने शुरू कर दिए थे, बट नोट्स आई डिडंट हैव द टाइम टू मेक नोट्स। आई फेल्ट लाइक दैट कहाँ से नोट्स बन Okay. सकते हैं, इतने रीड कैसे कर सकते हैं। तो मैंने तो जितना मुझे स्टडी मटेरियल मिल सकता था बुक से पढ़ा। बुक से बुक से ही पढ़ा था। और मेरा स्टडी पैटर्न कुछ मिसबैलेंस था कि जब जब अच्छा लगे तब पढ़ो। ऐसे नहीं है कि तुम पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। 6 घंटे लगातार नहीं पढ़ सकता, 4 घंटे भी लगातार कोई नहीं पढ़ सकता। तुम्हें देखना है कि उस टाइम उस दिन कितने तुम फ्री हो, कितना तुम्हारे पास तुम्हारी बॉडी अलाउ कर रही है कि नहीं कर रही है, उतना पढ़ो। Hmm. कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए उसमें, बस ये बात है कि ये नहीं है कि 4 घंटे पढ़ो, बट पढ़ो एक दो जितना तुम कर सकते हो। Yeah. Interesting. I think there are two opposites sitting today for a discussion because I was someone who used to time bound things. कि let's say मेरे को मैथ से डर लग रहा है या मेरे को साइंस से डर लग रहा है, तो मैंने इतने से इतने रोज करनी ही करनी है नो मैटर व्हाट. बाकी सब्जेक्ट्स बाकी चीजें बाद में, इतना से इतना ये चीज तो करनी है दिन में. आई वॉज दिस पर्सन जो टाइम बाउंड कर देती थी. एंड बाकी जो बचा हुआ टाइम था उसमें आई वॉज यू. ठीक है, मन कर रहा है तो एसएसटी पढ़ लेंगे या मन कर रहा है तो कोई और सब्जेक्ट कर लेंगे, बट जो टाइम बाउंड कर दिया खुद को वो तो करना ही करना है. तो दैट वॉज व्हाट आई अप्रोच्ड. ठीक है. मेरे तो मूविंग जो टेस्ट फॉरवर्ड. होते थे मैं उस हम्म. हिसाब से पढ़ती थी। अगले दिन मेरा एसएसटी का टेस्ट है, आई डिवोट माई सेल्फ टू एसएसटी एंड मे बी 5 to 10 क्वेश्चन फॉर मैथ्स। मेरे को तो आगे जो मेरा जो नेक्स्ट डे के लिए हो रहा है ना, मैं उसी से ध्यान देती थी। एवरीथिंग सूट्स फॉर डिफरेंट पर्सन डिफरेंटली। Yeah, that's why a lot of people ask me कि आप हमें एक generalized strategy दे दो, रोड मैप दे दो. I'm like, I can tell you options कि ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो. Now, which one you have to choose will depend upon the type of person you are and आप किस stage पे हो, आपके पास कितना syllabus बचा है, कितना नहीं बचा है. So there are a lot of factors on which a person will decide कि उसका study pattern कैसा होना चाहिए या क्या होना चाहिए. Okay. देखो हम जेनजीज हैं, वी हैव टू डू एवरीथिंग. हमें पार्टी भी करनी है, हमें फन भी करना है. वी वांना वॉच सम सीरीज, वी वांना वॉच इंस्टाग्राम. तो हाउ डिड यू मैनेज दैट सोशल मीडिया का साइड? एट पॉइंट्स इट माइट बी कंसिडर्ड कि सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन होती है, और एट टाइम्स कि हमने पढ़ना था और हमारे साथ वाले पार्टी कर रहे हैं, देन यू हैव अ फियर ऑफ मिसिंग आउट, व्हाट वी कॉल फोमो सॉर्ट ऑफ. So what was your approach to all of this happening? Because when you're committed to something, of course, there are certain things that you lose to. कि हाँ क्योंकि हम पढ़ रहे थे तो हमने ये नहीं किया या सब कुछ किया. So what was your आई approach मिस्ड to आउट मेनी मैरिजेस। बहुत it? फंक्शंस, Okay. बहुत फैमिली फंक्शंस एंड में आके मैंने बहुत मिस किए। स्टार्टिंग में तो आई वेंट आउट विद माई फ्रेंड्स, एंजॉय पूरा अच्छे से किया था। बट आफ्टर आफ्टर माई मिड टर्म्स I grew serious. I don't know how, but I grew serious. And my friends group, you can say they were all toppers. Everyone competing with each other, but nicely. So हम लोग सारे ही पढ़ते रहते थे। मुझे कभी फोमो फील होने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मेरा अगला बंदा भी पढ़ रहा है तो मुझे भी उसके साथ पढ़ना Hmm. पड़ेगा। तो Okay. और मैंने इंस्टाग्राम आई थिंक मैंने चलाया है। चला डिस्ट्रैक्ट है. देखो,
इस जेंजी में हम आकर ऐसा है नहीं कि हम फोन छोड़ सकते हैं। सोशल मीडिया इज अ नेसेसिटी इवन। या तो तुम्हें न्यूज मिलती है सोशल मीडिया पर, कुछ तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है वो पता चलता है। तो सोशल मीडिया वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी एट दैट टाइम, बिकॉज पूरा दिन नहीं पढ़ सकते, पूरा दिन या खेल भी नहीं सकते। तो कुछ ना कुछ अपना एक ओन टाइम होता है जब हम खुद देख के कुछ हंसें, कुछ नहीं हंसे, कुछ रो लें। तो वो फोन चलाना जरूरी है। आई डेंट वॉच एनी वेब सीरीज एट दैट टाइम। मुझे वेब हम्म सीरीज आई पता नहीं, मुझे अच्छी नहीं लगती थी तब। अब मैंने कुछ कुछ देखनी शुरू की है क्योंकि अब मैं +1 में आ गई हूँ। बट एट दैट टाइम मेरा फोन वॉज क्वाइट रिस्ट्रिक्टेड। मैं ज्यादा नहीं चलाती थी। या बट मैं ये एंड कहना इनसे चाहूंगी कि ये नहीं है कि तुम्हें छोड़ना चाहिए। That is a big mistake you are committing. एंड आई थिंक सो दैट इज अ लॉट ऑफ पीपल डू इज की पेपर आ गया, फोन आईडी डीएक्टिवेट कर देते हैं एंड बिल्कुल लॉक इन हो जाते हैं. आई हैव फाउंड नो लॉजिक इन दिस अभी तक, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज मैंने भी पूरा बोर्ड में चलाया है. आई वुड से वाज आई डिड नॉट डीएक्टिवेट और डिलीट माय इंस्टाग्राम सॉर्ट ऑफ, बिकॉज एज यू सेड सारा दिन नहीं पढ़ सकते, यू नीड अ ब्रेक. एंड कभी कभी तो कुछ इंपॉर्टेंट ही पता लग जाता है, कोई क्रिएटर कोई क्वेश्चन ही बता रहा होता है, तुम वही देख लेते हो कि ठीक है, माइट हेल्प अस लेटर और समथिंग सॉर्ट ऑफ. तो आई एग्री टू यू ऑन दिस कि एनीवन हु थिंक्स कि लास्ट के 30 days में इंस्टाग्राम डिलीट करके लॉग इन करने से ही सब कुछ होगा, तो नहीं. इफ यू कुडंट स्टडी फॉर 11 months, तो वो लास्ट के 30 days आर नॉट गोना हेल्प ईदर वेज. हम्म. Yes. ठीक है, ठीक है, ठीक है. आगे आते हैं हम. बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लोग लेते हैं. आई थिंक सो ऑलरेडी कवर्ड इट, बट थोड़ा सा इन डिटेल जाते हैं सो दैट पीपल गेट एन आइडिया कि व्हाट वाज योर अप्रोच टू सैम्पल पेपर्स और पीवाईक्यूज. लाइक फॉर मी, अगर सैम्पल पेपर्स होता था या पीवाईक्यूज होता था, तो आई फोकस अ लॉट ऑन एनालिसिस ऑफ इट कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, किस टाइप का आ रहा है. एंड जस्ट नॉट द क्वेश्चंस, आई यूज्ड टू सिट एंड वॉच कि बोर्ड ने मार्किंग स्कीम क्या दी है, कि किस चीज का नंबर है. हमें पता ही नहीं होता कि बोर्ड इस चीज के भी मार्क्स दे रहा है, हम कुछ लिख के आते हैं. So that was my approach to, PYQs और sample papers. What would be your approach to it? कि लोग जरा क्या कहते हैं, सॉल्व कर लिया तो हो गया. बट द रियलिटी इज नॉट दिस. रियलिटी स्टार्ट्स आफ्टर सॉल्व करना. उसको बैठ के चेक करना या चेक करवाना और वर्कआउट करना ऑन कि इज देयर अ पैटर्न ऑफ मिस्टेक्स आई एम मेकिंग, कि पहले भी यही गलती करी फिर यही गलती करी. और इज इट माई आंसर राइटिंग, इज इट माई कॉन्सेप्ट क्लैरिटी. तो जब तक तुम 10 पेपर दे नहीं दोगे और फिर बैठ के एनालिसिस नहीं करोगे उन 10 पेपर्स का, I found no logic in then otherwise writing a sample paper if you're not doing the after of it. So what was your take on sample papers or PYQs in general? I feel like I'm guilty because I didn't find any patterns. The one pattern I found was I did silly mistakes. And मैं जब भी सैम्पल पेपर सॉल्व करती थी, मैं अपनी टीचर को भेज देती थी, वो चेक करके मुझे बता देते थे और मैं उसे करेक्ट कर लेती थी। मैंने कभी ये नहीं देखा कि मार्किंग स्कीम में ऐसे लिखा है कि मुझे ऐसे ही आंसर लिखने हैं। मैं आंसर चेक कर लेती थी, अपना मैच कर लेती थी और काम खत्म हो जाता था। मैं काफी हद तक फ्री माइंडेड थी ऐसे। मैंने सैम्पल पेपर सॉल्व बहुत किए हैं, चेक भी बहुत Hmm. करवाया है, बट खुद से उसको एनालाइज करना मेरे लिए वॉज डिफिकल्ट। मुझे पता ही नहीं था कि ऐसे भी होता है। Okay, so now our audience has two options. या तो एनालिसिस कर लो या टीचर से चेक करा लो. द होल पॉइंट ऑफ इट इज कि सिर्फ लिख के नहीं छोड़ना, चेक करवाना हाँ। इज इम्पोर्टेंट. वो चाहे आप खुद चेक कर रहे हो, सेल्फ एनालिसिस कर रहे हो या टीचर से करवा रहे हो, आई थिंक सो दैट वर्क्स ईदर वेज. ओके. इसके अलावा, like we talked a lot on the education side and a lot of people would now have an idea कि अगर उन्हें अपने बोर्ड्स देने तो वो कैसे दे. Do you think answer writing carries a value, or how you are approaching yourself on the day of your board exam? कि सुबह कैसे जा रहे हो, किस माइंडसेट से जा रहे हो, like does all of that carry a value to you? Because it did to me, so I was like trying to get a gist of what was it for you. It was the same for me. My mother used to tell me sleep at 10 and wake up at 2. There is nothing like late night studies. Don't disturb your sleep patterns. So Uh, before, for example, before my science exam, I had 2 days for that, and I woke up at 2. I studied many questions. I
I don't know how many questions I did that day at waking up at 2. And there was a hype for Prashant sir at that time. Yeah. So मैंने प्रशांत सर की वीडियो देखी, देख ली कि कौन से क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। तो मैं उसके बाद मेरा ऐसा था कि मैंने नहीं पढ़ना उसके बाद। जितना मैंने उस 2 o'clock से 6 o'clock तक पढ़ लिया। उसके बाद मैं पढ़ाई भूल जाऊंगी उस टाइम के लिए। मैं जब बोर्ड के सेंटर के बाहर जाती थी, अपनी फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल आराम से बातें करती थी। कोई हमें डर नहीं था कि हमारा बोर्ड है उस दिन। हम लोग फ्री माइंडेड छुट्टियां कैसे बिताई, वो बातें करते रहते थे, ताकि जो स्ट्रेस है ना वो रिलीव हो जाए उस टाइम तक। पेपर में जाते जाते हॉल में बैठना है, अच्छे से भगवान को याद करना है, प्रेयर करनी है। एंड पेपर शुरू होने से पहले अब पेपर शुरू होने से पहले अपने दिमाग को ब्लैंक कर लेना है। पेपर देते देते पेपर देते देते ऐसा सोचो कि तुम्हें सब कुछ आता है। जो आंसर छूट Yeah. गए उसको उसको छोड़ दो। और फिर उसके बाद लास्ट का मेरे पास हमेशा 1 घंटा बच जाता होता था मिराक्युलसली। एंड उस 1 घंटे में मैं इतना सोचती थी उस आंसर्स के ऊपर। मुझे जितने भी पॉइंट्स आते थे उन सबको लिख देती होती थी कि मैम Yeah. कोई गलती ढूंढ ना ले। मेरे को तो अगर ऐसा एक लगता था कि मुझे अगर आता है ना तो मैं एग्जामिनर को बता के आऊँ कि मुझे आता था, तो मैं देखो सब लिख के आई हूँ। मैं इस थॉट प्रोसेस से चलती थी कि भाई उसको बता के आओ कि मैं पढ़ के आई हूँ, मुझे आता है तो जितना आता है लिख के आओ। देयर नो वन स्टॉपिंग यू फॉर राइटिंग एक्स्ट्रा, बट हाँ देयर अ वे यू राइट इट। मैं पहले सारा पेपर कंप्लीट करती थी, उसके बाद जिस क्वेश्चन में कोई पॉइंट था यू एड इन टू इट। यस, मैं या अपनी फेयर मेरी एनफ। छोटी सिस्टर को भी मैं यही बोलती हूँ कि तुझे अगर आंसर का कुछ भी पॉइंट आता है ना उसे लिख के आना है, या बेटर देन राइटिंग नथिंग। आप कुछ गलत लिख लो, गलत भी नहीं हो, पता नहीं तुम्हें पता नहीं चलेगा कि जो तुमने गलत लिखा है ना वो सही होगा उस टाइम पर। मेरे को साइंस के पेपर में मुझे काफी लगे थे ऐसे क्वेश्चन कि ये गलत हो सकता है, ये गलत हो सकता है, तो मैंने उनको इतना ज्यादा एक्सपैंड करके लिखा था। एंड देयर इज अ वे ऑफ राइटिंग टू ट्रिक द टीचर, कि तुम्हें ऐसे आंसर लिखना है कि टीचर को समझना है तुमने गलत लिखा है कि सही लिखा है। वो मास्टर करने के लिए तुम्हें वो सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं और टीचर्स को चेक करने के लिए भी देने हैं। यस, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट टू नोट, अदरवाइज मैंने ये कभी नहीं किया। Okay. Anyways, I just have a last two questions for you. ठीक है. पहला is message to anyone who's appearing for boards this year. What would be your message? दूसरा is, do you believe in setting a goal? Like, do you believe in that sort of जो आजकल चलता है, manifestation करो, affirm करो. So do you believe in setting a goal for yourself so that you have something to chase? मतलब I believe in ki you should have a why, because that gets you going. Ki why are you doing this? Because if you are unmotivated someday and you don't want to work, you go back to your why, and that gets you going. Because no amount of external motivation can work if you don't know a why. So that why could be anything, like as simple as कि मुझे टॉपर्स डे पे अवार्ड लेना है, और as grand as कि मुझे तो इंटरव्यू देना है. Right? It could be anything, but there should be something. So, do you believe in setting a goal, setting a why? Do you believe in manifestation? Like, what's your take on मैं वो वाई का आंसर हमेशा अपनी आंखों के सामने रखती थी। मैंने जहां पर मैं पढ़ती हूँ वहां पर it? मैंने लिखा था स्टेट थर्ड। मेरी जर्नी ऐसी थी कि मैं 9th क्लास में ओवरऑल 8th क्लास में मैं अपनी क्लास में थर्ड आई थी। 9th में मैं अपने स्कूल में 9th में थर्ड आई थी। तो मेरा 10th में ये गोल था कि मैं स्टेट में थर्ड आऊंगी। तो वो मैं स्टेट में थर्ड अपने आंखों के सामने लिख रखी थी। मैं 8th में मेरे को था कि मैं जब मुझे ट्रॉफी मिली मुझे बहुत अच्छा लगा। बट मैंने टॉप उस दिन अचीवर्स डे पे देखा कि जो टॉप 3 बच्चे आए ना उनके पेरेंट्स को स्टेज पे बुलाया, उनके पेरेंट्स को इतनी खुशी हो रही थी। मुझे लगा कि मैं नहीं ये कर सकती, क्या मैं अपने मम्मी पापा को ऊपर लेके जा सकती हूँ? तो दैट केप्ट मी गोइंग। एंड 9th में मैं अपने मम्मी पापा को ऊपर लेके गई एंड Mm. स्टेज के ऊपर। 10th, तो उसके बाद मैंने एक और मुझे मोटिवेशन मिली कि मेरे स्कूल में काफी बच्चे कुछ पॉलिटिशियंस बिगर फिगर से मिले हुए हैं, क्योंकि वो
अचीव कर रहे थे कुछ ना कुछ, तो मुझे था कि ये तो मैं भी कर सकती हूँ, क्या मैं ये नहीं कर सकती, मैं कर सकती हूँ। तो मुझे था कि अपने मम्मी पापा को इतने बड़े मुकाम पर लेके जाना है। तो वो गोल मैं अपने आंखों के सामने रखती थी। मुझे कोई टीचर पूछती थी कि कोई ना, हमारे स्कूल में स्टेट टॉपर्स तो बहुत आ जाते हैं, क्या कोई नेशनल आने की सोच रहा है, तब मैं हाथ खड़ा कर देती थी। मेरे आसपास कोई हाथ नहीं खड़ा करता था। मुझे लगता था यार किसी, मतलब सब अंदर सोच रहे होंगे, हाय ये कैसे इतना इतना क्यों सोचती है, वो अपने आप हो जाएगा। बट मुझे लगता है जो मैंने वो हाथ खड़ा किया था ना, वो मेरे सेल्फ कॉन्शियस माइंड को बूस्ट कर रहा था। वो हाथ Yeah. खड़ा करने की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। मेरे मम्मी इट वाज एज सिंपल एज इट कि मुझे न्यूज़पेपर में फोटो आनी है उनके साथ, ठीक है, बिकॉज आई हैव बीन लाइक अवार्ड वाला थिंग हैज बीन देयर विद मी अ लॉट ऑफ टाइम्स। तो मेरे को ये था कि मुझे न्यूज़पेपर में फोटो लानी है, बस कि मम्मा पापा को ना फोन आए सामने से कि अपने आप की न्यूज़पेपर में फोटो देखी। तो आई कुड रिलेट टू व्हेन यू वर सेइंग इट दैट व्हाट वाज योर व्हाई एंड व्हाट वाज माय व्हाई, समवट द थॉट वाज सेम। एंड जो आपने वो बोला कि यू वुड रेज योर हैंड एंड डू दैट थिंग, आई डिड नॉट हैव दिस विद मी कि मुझे ये वाली पोजीशन लानी है। आई हैड इट कि न्यूज़पेपर में फोटो लानी है। तो मेरे को ये पता था कि 99% अगर क्रॉस हो जाती है ना तो कोई पोजीशन तो बन जाती है, फर्स्ट बन जाएगी, सेकंड बन जाएगी, तो फिर दैट इज इनफ टू गेट अ पिक्चर इन द न्यूज़पेपर। तो मैंने टारगेट रखा हुआ था 99% प्लस, दैट वाज इट। आई डिड नॉट डिफाइन अ पोजीशन, आई डिड नॉट डिफाइन एनीथिंग, बट अगेन जहाँ मैं पढ़ती थी वहां पे लगाया हुआ था कि ओके आई वांट 99% प्लस। Okay, just to end this on a fun note, I have a rapid fire question with you. I ask you two things. You need to choose me one. Okay. So, a morning person or a night owl? मॉर्निंग पर्सन। I am also a morning person. A subject you hated studying or you hate studying abhi bhi? मैथ्स एंड Math? साइंस एट दैट टाइम। Okay. For me, if I talk 10th के time पे, it was history, geography, and this type of SST basically. And as of now, I think so. I like everything I do, except if maths creeps in somewhere. Okay. एसएसटी तो What मेरे was लिए बहुत, आई लाइक एसएसटी वेरी मच। सबसे अच्छा um, सब्जेक्ट मुझे एसएसटी लगता था। मुझे मेरा एक था अंदर, एसएसटी में 100 मार्क्स बहुत कम लाता था कोई, तो मुझे था yeah. कि मैं अपनी एसएसटी टीचर को दिखाऊं कि मैम देखो मैं भी लेके आ सकती, मैं पहली हुई जो 100 लेके आऊंगी और आप देखते रह जाओगे। एंड uh, वो सही हुआ कि मैं अकेली थी हमारे स्कूल में जिसके 100 आए थे। I kind of have that deep respect for anyone जिस जो SST में इतने अच्छे स्कोर लेके आ सकता है. I had 95 in my 10th, I guess. Yeah. But I hated SST like anything. I still do that. Anyways. छोड़ दीजिए। Tea or coffee? Like, what was your savior in the times of exam? Or nothing? नथिंग। Nothing. Okay. Go to study snack. स्टिल नथिंग। Still nothing. Okay. For me, it was ice creams. मैं पढ़ते पढ़ते अगर like I've studied in a long duration and I want a break, I'll probably go and grab an ice cream. एट Okay. दैट टाइम आई हैड Uh, मेनी रिस्ट्रिक्शंस टू ईट समथिंग। मैं ये नहीं खा सकती, मैं वो नहीं खा सकती, मेरे डेयरी प्रोडक्ट्स तब बंद थे, तो मैं, मेरे लिए तो सुबह उठ के मैं भूखी रहती थी, पानी भी नहीं पीती थी कभी कभार तो नहीं नहीं मेरे लिए कोई स्नैक्स नहीं थे, मेरे लिए कुछ भी ड्रिंक्स वगैरह नहीं थे। नहीं. Okay. Um, if you could delete one subject from your syllabus, what would it be? नाउ और इन 10th? Either ways. राइट नाउ आई वुड से बिजनेस, बिकॉज आई हैवंट टच्ड बिजनेस, मे बी because of my additional subject. And if I had to say in 10th, I'd say science. Okay, वैसे business is easy. No need to delete. Okay, last one question. What was your go-to motivation mantra for your own self? Like, कभी, what do you say to yourself when you feel demotivated or something like that? खुद से क्या मम्मी है। बोलते हैं? मम्मी है. मम्मी है। Okay. For me, it was believe in yourself.
Yeah, it मेरे को works था कि out. मेरी मम्मी हमेशा मेरे साथ है, मम्मी को मैं कुछ भी बोल दूंगी, मम्मी मुझे उसका आंसर देंगे। तो मेरे लिए तो बस यही था कि कुछ भी हो जाएगा तो मम्मी है तेरे पास। Yeah. आई कांट I think so. इमेजिन अ लाइफ विदाउट माई मदर। I think so. That's the best thing to have ever. So with this, we come to the end of this small podcast or an interview, whatever you call it. Um, Thank you so much, Jenica, for joining in and sharing your views. I believe that anyone who's watched this video till here would now have a very fair idea of what could work for them or how basically toppers think. आई थिंक सो बहुत सारे जानों को लगता है कि टॉपर्स कुछ स्पेशल करते हैं या कुछ एक्स्ट्रा करते हैं बट नाउ दे गेट इन टू दी हेड्स ऑफ मे बी टू टॉपर्स डिस्कसिंग एंड गेट टू डिफरेंट वेरिड ओपिनियंस आई बिलीव एंड कई पॉइंट्स पे दे वर सेम टू सो thank you for joining in and I wish you all the best for whatever you do. And to all those who watch this video, thank you for watching till the end. Do not forget to like, share, and subscribe. And do let me know in the comments what do you want me to cover up in the further videos. Do subscribe to the channel because I'll give you choti choti tips for your bade bade dreams. I'll see you in the next one. Until then, bye bye.